Hello my dear students, welcome back in another video with your English teacher Shahnaz ma'am. Hoping all are safe and fine. So, since right now we are not going to school, but you can meet your subject teachers as well as your class teacher on each second Saturday at school, and you can also meet your friends who are coming in school on each second Saturday. Since right now we are not going to school and we are not having our regular classes over there, students, as you know, entire world is facing the problem. So this is the time when we have to focus on our studies, when we have to focus on our future. Now, after your first periodic exam, we will start our online classes from Monday onwards. Monday onwards means after the Independence Day. And obviously, your teacher will teach you in the online classes. And meanwhile, I have prepared this video. So you can take the help of this video to make your learning more effective. So let us see what is given here. You can see here this is the 6th chapter of your English reader book, and the name of the chapter is The Real Feast. So before starting this chapter, so I'll tell you what is this. So this is a folk tale. What is the meaning of folk tale now? Already we have learnt one more folk tale in this your book, English reader book, and that was a Japanese folk tale which was given in the 3rd chapter. Now this is also a folk tale, and this is a Kashmiri folk tale. Okay, so let us see what is given in this chapter. A real feast. Do you know what is the meaning of feast? Feast means when we are calling or when we are arranging the food or different kinds of dishes for our guests, for our relatives, or for our friends at home, and when we are organizing a party, so we arrange a feast. In Hindi, or in simple word, if I'll say, feast means dawat. Feast means dawat. Okay, so now look at here in the first page of your this 6th chapter, page number 46. So you can see here few pictures are given. So what are these pictures telling you about? So yes, all these pictures are telling you about some delicious dishes. So which dish do you like the most? You just take and write few sentences about itself. You can take your rough notebook also to write this, or you can write on a page also about your favorite dish. You can write few sentences how your mama is cooking this, what ingredients she needs to cook this dish, and why you like to eat this. Okay, so now we are going to start our chapter. Actually, what is given here? So now let us see. Many years ago, a man from a village in the plains of North India, further north, to be the guest of his friend. Okay, so here the name of the plain, the name of the village is not given, but where is the village? Village in the plains of North India. North India means we have 4 directions, you know very well. Yes, so that is what? North, east, west, and south. So this is what east, west, north, and south. So you have learnt in your EVS subject, you have learnt in your science subject also. So this is the village. It lies in North India. Went north to be the guest of his friends. His friend was Moti Lal. So what is the name of the friend? One of the friend is Moti Lal, and the guest Kishan Lal. So Moti Lal, where does Moti Lal live now? So Moti Lal lived in the region of hills and valleys where fruits and flowers of every kind grew in abundance. Abundance. The meaning of abundance means in plenty of. Plenty of means बहुत सारे. तो मोतीलाल कहाँ रहता है? मोतीलाल एक वैली में रहता है. वैली मीन्स होती है घाटी. Okay, so in North India most of the regions are they are in plains. कुछ जगह प्लेन्स है, कुछ वैलीज़ हैं, यानी कि वैलीज़ मीन्स कुछ पहाड़ियाँ हैं. तो मोतीलाल कहाँ रहता है? एक वैली में रहता है. विच वॉज अबंडेंट इन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स से भरी हुई है, बहुत सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स है. किशन लाल हैड कम फ्रॉम प्लेन्स. अब जो किशन लाल है वो कहाँ से आया है?
वो प्लेन से आया है. प्लेन्स मीन्स नॉट दैट एन एरोप्लेन, दैट प्लेन्स मीन्स होता है मैदानी एरिया, है ना. देयर दैट वेयर वी लिव दिस इज़ द प्लेन्स. ओके, प्लेन्स. And the some people live on hills and valleys, so that are the different places. Valleys यानी कि घाटियाँ, plains means मैदानी एरिया. ठीक है, जो जहाँ हम रहते हैं वो plains है, वो मैदानी एरिया है. So he was delighted to see place. So किशन लाल जो यहाँ मोतीलाल के घर आया हुआ है, वो ये सारी चीज़ें देख के बहुत खुश होता है. He is very delighted. Delighted means to glad, यानी कि खुश होना. सो ही इज़ वेरी हैप्पी हियर टू सी दिस ब्यूटी. वो यहाँ की सुंदरता देख के बहुत खुश होता है. नाउ टू वेलकम हिज फ्रेंड मोतीलाल अरेंज्ड अ ग्रैंड फीस्ट. अब अपने दोस्त को वेलकम करने के लिए मोतीलाल ने क्या किया? मोतीलाल ने एक ग्रैंड फीस्ट अरेंज किया, मीन्स एक बहुत शानदार दावत अरेंज की उसके लिए. द अर्थवेयर प्लेटर्स वर फिल्ड विथ ब्राइटली कलर्ड फूड. Vegetables, fruits and sweets completed the meal. अब यहाँ पर जो उन्होंने जो बनाया, जो आज का फीस्ट का ग्रैंड फीस्ट का जो वहाँ पे मेन्यू जो था, जो खाना था, वो बहुत ही ब्राइट था. ब्राइट एंड कलर्ड फूड, बहुत ब्राइट था, कलर फूड था. उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड थी, लाइक वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे, स्वीट्स थी, जो एक कंप्लीट मील का काम कर रही थी. मतलब एक जो पूरा फीस्ट, एक जो पूरा खाना होता है, किस तरह से खाना, अ बैलेंस डाइट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर. सो यहाँ पे जो खाना था, जो फीस्ट था और जो डिशेस थी, वो बिल्कुल एक कंप्लीट बैलेंस डाइट फूड था. नाउ व्हाट हैड हैपेंड देन? सो as Kishanlal began his lunch, Motilal eagerly waited for words of praise, but to his disappointment, Kishanlal said the meal was wonderfully cooked, but the feast served in his village are better. Oh, now what had happened? किशनलाल ने जब लंच स्टार्ट किया खाना, तो अब मोतीलाल वेट कर रहा था कि ये मेरा दोस्त लंच खाएगा, स्टार्ट तो कर चुका है. नाउ व्हेन ही विल ईट ही विल अप्रिशिएट इट. वो मुझे अप्रिशिएट करेगा इस खाने के लिए, इस मील के लिए, वो मुझे प्रेज़ करेगा, यानी कि बहुत अच्छे शब्द बोलने वाला है. बट द फीस्ट सर्व्ड इन हिज विलेज आर बेटर. बट वो क्या बोलता है लास्ट में? सो वह बोलता है, किशनलाल बोलता है कि इससे अच्छा खाना तो मेरे गांव में होता है. Motilal summoned his cooks and ordered them to cook dinner on a grander scale. अब क्या हुआ? अब यहाँ किस मोतीलाल ने अपने सर्वेंट को बुलाया, है ना. ही कॉल्ड हिज सर्वेंट एंड ही ऑर्डर देम टू कुक डिनर ऑन अ ग्रैंडर स्केल. अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि खाना जो है, अभी जो मील बनने वाला है, जो खाना बनने वाला है, वो इससे भी बड़े पैमाने में, यानी कि इससे भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. Again, the table was laid with delicious dishes, fruits, and mouth-watering sweets covered by silver paper. ओके, नाउ अगेन फिर से अब क्या हुआ? यहाँ पे फिर से सर्वेंट ने सब कुछ अरेंज किया. एंड डिशेस वॉज वेरी डिलाइटेड, दे वर लुकिंग वेरी डिलाइटेड, डिलीशियस एंड फ्रूट्स एंड माउथ वाटरिंग. माउथ वाटरिंग मीन्स जिसे जिन डिशेस को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. कवर्ड एंड स्वीट्स, स्वीट्स भी थी जो किससे कवर थी? सिल्वर पेपर से. एंड ऑल देयर वर ग्रेट हस्टल बस्टल इन द किचन. हस्टल एंड बस्टल मीन्स हड़बड़ी में, सब वहाँ पे हड़बड़ी में दिख रहे थे सर्वेंट्स, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर अ डिलीशियस मील. नाउ दे हैव प्रिपेयर्ड एंड दे हैव सर्व्ड ऑन द टेबल. अब उन्होंने बनाया और टेबल में उसे सजाया, उन्हें अरेंज किया. नाउ so what happens once again here? So you can see here on the second day, as the servant has served the different dishes here. So the fruits luscious and ripe made a fantastic picture. So table, you can see here, table is well arranged with the different types of dishes. Fruits are there and sweets are there, many more items are there. Okay, on yet another table were set plates of mouth-watering sweets covered with silver paper. So all sweets are here mouth-watering.
सो होता है ना कि कई बार आपको कभी मम्मा ने अच्छी डिशेस बनाई हैं या फिर आपके नेबरहुड से कहीं से स्मेल आ रही है, अच्छी सी नाइस फ्रेगरेंस आ रही है जिससे आपको पता चल रहा है कि नूडल्स बन रहे हैं या फिर मलाई कोफ्ता या पालक पनीर या कुछ भजिए हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, चिप्स फ्राई हो रही है, कुछ तो भी बन रहा है, तो आपको क्या होता है, फ्रेगरेंस आती है. सो यू कैन से येस something is good cooking in house. So here this mouth watering sweets, so all sweets were really mouth watering and they were covered with the silver paper. वो किससे कवर थे, वो सिल्वर पेपर से कवर थे. So you also have seen that some sweets are available in the market which are covered with the silver paper. Now the grand fair was set before the friend and Motilal waiting in agonizing silence. Surely now his friend would not say that it did not compare with the feast of his village. With a great variety of food served, dinner took a long time. Now once again, अब यहाँ पे फिर से मोतीलाल वेट करता है कि ये मुझे अब तो प्रेज़ करेगा, अब तो मेरे खाने की, मेरे दावत की तारीफ़ करेगा, या अब बोलेगा कि मुझे रियली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे इस तरह का खाना खाने को मिला है. एट लास्ट द फ्रेंड स्पोक. योर फूड डियर मोती इज़ फिट बट द टेबल ऑफ अ किंग, बट स्टिल इट कैनॉट कंपेयर विद द फीस्ट आई हैव एट होम. अब देखो कितना बड़ा बात उन्होंने बोल दिया. किसने बोला ये मोतीलाल ने बोला. टू हुम ही सेड टू किशनलाल. व्हाट ही सेड, ये जो तुम्हारा जो टेबल है, ये एक जो तुम्हारा खाना है जिस टेबल पे रखा है, ये एक किंग के लिए है, यानी कि एक राजा के लिए हो सकता है, बट स्टिल इट कैन नॉट कंपेयर विद द फीस्ट आई एट होम. सो लेकिन फिर भी ये जो खाना है मेरे घर के खाने से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी कि इसकी तुलना मेरे घर के खाने से नहीं की जा सकती. मोतीलाल nearly dropped down in disappointment. What were the feast of his friend's village like? How lavish were they that the rich fare of his valley could not even compare with them? अब यहाँ पे मोतीलाल सोचता है, बहुत दुखी होता है, वो बहुत उदास हो जाता है. डिसअपॉइंटमेंट मीन्स उदास होना, यानी कि नेगेटिविटी आ जाती है उसमें, उदास हो जाता है वो कि इसके गांव में किस तरह का खाना होता होगा. क्या वो लेविश मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, क्या वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता होगा, जो बहुत ही यहाँ से भी अच्छा बनता होगा, जो यहाँ वैली के खाने से कंपेयर नहीं किया जा सकता. एट लंच द नेक्स्ट डे द फूड वॉज सो डिलीशियस दैट पासर बाय स्टॉप्ड एंड लिक्ड देयर लिप्स एट जस्ट द स्मेल ऑफ इट. मोतीलाल bit his lips nervously. Yet once again Kishanlal's response was, I would really have said that the food today was incomparable had I not tasted the feasts at home. अब फिर से लंच में क्या होता है, फिर से लंच में डिलीशियस फूड जो था वो सर्व होता है, टेबल पे अरेंज किया जाता है. यहाँ दैट पासर बाय इज़ यूज्ड. पासर बाय मीन्स होता है जो लोग गुजरते हैं रोड से, है ना, जो रोड से पास होते हुए जाते हैं, यानी कि निकलते हुए जाते हैं, गुजरते हैं, तो वो रुक के अपने लिप्स को लिक कर रहे थे. लिक्ड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ लिक मीन्स चाटना. okay, so this is happening when we are eating something like chocolates, like salty biscuits, like namkeen, है ना, chips, kurkure, so we are licking our lips. So how here also the passerby stopped and licked their lips and smell it. एंड पासर बाय जो जितने भी निकलते जा रहे थे वो सभी अपने ओठों को लिक करते हुए जा रहे थे और खुशबू लेते हुए जा रहे थे खाने की. और आज भी क्या हुआ, किशनलाल ने वही बोला जो वो हर बार बोलता है कि इससे अच्छा खाना तो मेरे घर का है. मोतीलाल साइलेंटली एक्नॉलेज्ड डिफीट एंड फॉर द रेस्ट ऑफ किशनलाल स्टे. Though he always had the best of food served, he no longer tried to compete with the food Kishan ate in his village. Eventually, Kishanlal went away. Okay, so here he was really very disappointed with the
Motilal that he served the delicious meal to him, but always he said that my food, my meal at my village or at home is superior. That is good in taste. Now, what happened next here? So, after many years, Motilal decided to visit his friend in plains and thought about the opportunity to taste the famous feast of Kishan's village. अब बहुत कुछ सालों के बाद, आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ सालों के बाद क्या होता है, मोतीलाल डिसाइड करता है कि वह अपने दोस्त के घर जाएगा. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फ्रेंड? सो ऑब्वियसली द नेम ऑफ द फ्रेंड इज किशन लाल. ओके, नाउ इन प्लेन्स एंड थॉट, अब वो सोचता है कि वो वहाँ जाएगा और वहाँ पर जाके देखेगा कि वहाँ का खाना कितना अच्छा है, वहाँ की दावत जो है कितनी अच्छी होती है. किशन लाल वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स. ही वार्मली वेलकम्ड हिज फ्रेंड. किशन लाल जो था अपने फ्रेंड को देख के बहुत खुश हुआ, मीन्स मोतीलाल को देख के बहुत खुश हुआ. मोतीलाल वॉज एक्सपेक्टिंग अ लैविश डिनर टू बी सर्व्ड. However, a simple dinner was served, which included rotis, a bowl of curd, salad, dal, and a plate of vegetable. So अब मोतीलाल एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही रिच उसको डिनर मिलने वाला है. बट क्या हुआ यहाँ पे, उसको बहुत ही सिंपल जो डिनर था वो मिला. बहुत ही सिंपल डिनर था. तो उस डिनर में क्या क्या इंक्लूड था? तो उस डिनर में इंक्लूड था रोटीज़, अ बोल ऑफ कर्ड, यानी कि बोल मीन्स होता है यहाँ कटोरा, है ना, कटोरा, एक कटोरा दही था, और क्या था, सैलेड थी, दाल थी, और अ प्लेट ऑफ वेजिटेबल्स. मोतीलाल gulped down the food without a word and thought that maybe the delicacies of the village would be served to him tomorrow. तो अब यहाँ पे gulped is the past tense of gulp. Gulped means होता है निगलना, ना, swallow, यानी कि जल्दी जल्दी निगल जाना. गल्प्ड यानी कि डकार लेना होता है. गल्प्ड मीन्स होता है डकार लेना, जल्दी जल्दी खा के उसने डकार ले लिया. ओके, थॉट मे बी द डेलिकेसीज ऑफ द विलेज वुड बी सर्व्ड टू हिम टुमारो. अब वो सोचता है कि जो यहाँ का डेलिकेसीज यानी डिलीशियस फूड जो है कल मुझे दिया जाएगा. नाउ द वीक पास्ड थ्रू बट द फूड सर्व टू हिम वॉज सेम एवरी डे. अब जो खाना उसे रोज़ दिया जाता था वो कैसा था? वो सिंपल था, रोज़ जैसे ही था. फाइनली द डे ऑफ हिज डिपार्चर अराइव्ड. अब बहुत जल्दी उसका जाने का दिन आ गया. स्टिल देयर वॉज नो चेंज इन द फूड. अभी भी उसके खाने में कोई भी चेंज नहीं था. सेम फूड वॉज गिवन बाय किशन लाल टू मोतीलाल एवरी डे. Now Motilal could no longer stay quiet and asked his friend that when he came to stay with him, he always said that the food in the valley couldn't stand in comparison with the food of the village. अब यहाँ पे क्या होता है, मोतीलाल बिल्कुल बहुत दिनों से चुप था. वो वेट कर रहा था कि शायद अब मुझे अच्छा खाना मिलेगा, बट अब क्या हुआ, वो चुप नहीं रह पाता और उसे बोल देता है किशन लाल को कि किशन लाल, जब तुम मेरे घर आए थे तुम मुझे बोलते थे कि मेरे घर का खाना तुम्हारे घर के खाने से कंपेयर नहीं किया जा सकता. सो he further said that the food which was served to him throughout his stay at Kishan Lal's house was very simple. It could not match the superiority of his food or his feast. तो अब यहाँ पे ये बोलता है, मोतीलाल बोलता है कि मेरे घर का खाना और तुम्हारे घर के खाने की कोई भी इसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मेरे घर का खाना जो था वो बहुत ही सुपीरियर था, बहुत अच्छा था. किशन लाल वॉज सरप्राइज टू हियर दिस. अब किशन लाल सुन के बहुत सरप्राइज होता है कि व्हाट ही सेड.
He then hugged his friend and said that we are simple people and our food and habits are also simple. अब किशनलाल यहाँ पे सरप्राइज़ होता है और उसे बोल देता है, ये सुन के किशनलाल सरप्राइज़ हो जाता है उसकी बातों को सुन के और अपने दोस्त को हग्ड करता है. हग्ड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ हग. हग मीन्स गले लगाना. अपने दोस्त को गले लगाता है और बोलता है यहाँ के लोग सिंपल हैं, यहाँ के लोग सिंपल खाना खाते हैं और बहुत सिंपल लाइफ को स्पेंड करते हैं. He said that the people in the village work hard in fields and eat simple but nourishing food. This is the secret to their health and prosperity. अब यहाँ पे सीक्रेट बताता है किशनलाल कि यहाँ गांव में, हमारे गांव में सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपने खेतों में, सिंपल खाना खाते हैं, लेकिन जो खाना खाते हैं वो बहुत ही नरिशिंग होता है, बहुत ही विटामिन से भरा होता है. वाइटामिन्स जितने भी उसमें प्रोटीन्स होते हैं सब कुछ होता है. सो ये सीक्रेट है उनकी हेल्थ का और प्रॉस्पेरिटी का, खुश होने का. मोतीलाल हैड टू एक्नॉलेज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज फ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट्स. ही रिटर्न होम अ चेंज्ड मैन. अब जब वो घर जाता है मोतीलाल तो वो बहुत एक चेंज हो जाता है, उसमें बहुत कुछ समझने की क्षमता आ जाती, बहुत कुछ उसको पता चलता है. उसके जो दोस्त बोलता है उसे, जो किशनलाल उसे बोलता है, दिस इज़ द सीक्रेट टू देयर हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी. सो जब वो इसे बताता है कि सिंपल लाइफ, सो पीपल हियर इन दिस प्लेन्स दे आर लिविंग सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. दे आर लिविंग सिंपल एंड दे आर थिंकिंग हाई, यानी कि सिंपल रहते हैं लेकिन ऊंचा सोचते हैं. So this is what we have learnt in this chapter. Go through this chapter, read the chapter once again. That's all for the day. Thank you and have a nice day.